How do organisms obtain their nutrition? So let's start with the chapter Life Processes for class 10th. All the notes will be included of the nutrition. Like amoeba captures the food using the temporary finger-like projections or extension called pseudopodia of the cell surface. So here you can see that these are the finger-like projections and these are called pseudopodia where the P is silent. And they fuse over the food particles forming a food vacuole, and in this food breaks down into the simpler ones and diffuse into the cytoplasm. The undigested material is moved to the cell surface and thrown out. So when the food particle enters the cell, or you can say the amoeba, the food gets digested by the nucleus and diffuses in the cytoplasm so that all the cell organelles get the nutrition of the food vacuole and has been absorbed, and the undigested food has been thrown out from the cell surface. Paramotion takes the food at a specific spot by the movement of cilia. It is a hair-like structure. So let me draw. It is a cell called paramotion, which is prokaryotic cell, and these are the hair-like structure, and these are called cilia. And one more is called flagella. It is also prokaryotic. It has a single, or you can say double hair, but it has many hairs on its surface. These are called cilia, and cilia helps the paramecium cell to take the food. This is the food, and with the help of cilia, paramecium take the food. Nutrition in human beings. Human alimentary canal is a long tube extended from the mouth. This is the mouth, and this is the anus. This hole is called human alimentary canal, and these are the organs of digestive system. We have our tongue, we have our esophagus, diaphragm, gallbladder, bile duct, liver, stomach, small intestine, pancreas, and large intestine, and appendix. Here, stomach and pancreas, also the liver secretes some juices which help in the digestion of the food. Let's see. It is the breakdown of the complex food with the help of enzyme into the smaller absorbable मॉलिक्यूल्स. तो होता क्या है, हमारे बॉडी में बहुत ही कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. उन्हें ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो तब जाके वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होके एनएस से थ्रोन आउट हो जाता है. In the mouth, food is chewed with the help of the teeth and muscular tongue. It is mixed with the saliva secreted by the salivary glands. Teeth are used to crush the food into the small particles. Saliva contains salivary amylases enzyme जो कि starch को simpler sugar या फिर maltose शुगर में ब्रेक डाउन करता है ताकि वो आसानी से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए. ये एक्सपेरिमेंट है सिर्फ आपको समझाने के लिए. अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. द लाइनिंग ऑफ द alimentary canal is soft for smooth passage of the food, and there is a movement that is contract rhythmically to push the food forward. This type of movement is called peristaltic movement. Peristaltic movement.
which is then the esophagus. Now from the mouth, food is moved through the esophagus food pipe and reaches the stomach. अब भाई हमने खाना खा लिया, मुंह से हमारा सलाइवा निकल गया जिससे हमारा जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया। देन अब जाएगा हमारे ईसोफेगस से हमारे पेट में। पेट में 3 टाइप्स के जूसेस सिक्रीट होंगे या और उन्हें आप एंजाइम्स भी कह सकते हैं। दैट इज gastric juice, gastric glands, which call hydrochloric acid, pepsin and mucus. अगर इन दोनों में से एक भी ना हो तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखते हैं कैसे। HCl जो है यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन जो होती है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाती है। कैसे हेल्प करवाती है? पेप्सिन जो होती है प्रोटीन को पेप्सिन कन्वर्ट कर देती है प्रोटीन को इनटू द पेप्टोन्स ताकि वो आराम से आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो सके। देन म्यूकस। अब भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो पता है नहीं कि उसे कितना सिक्रीट होना है, तो म्यूकस क्या करता है वो अपनी एक लाइनिंग बना लेता है स्टमक के वॉल्स पर ताकि जो है उस जो हमारा एसिड है उसका एक्शन बढ़ ना जाए। अगर वो बढ़ जाएगा तो हमारे पेट में एसिडिटी होगी। तो जब हमें पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है मतलब अजीब सा पेट में दर्द हो रहा होता है तब हम लेते हैं इनो। इनो क्या करता है? HCl जो होता है उसकी मात्रा को कम करता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि म्यूकस जो है अपना प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं बना पाता, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं एसिडिटी। अब है स्पिंक्टर मसल, regulates the exit of the food in the small amounts of the stomach into the small intestine। अब भाई पेट में सब कुछ हमारे गैसेस सिक्रीट हो गए हैं, अब जा रहा है हमारा फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि सबसे लॉन्गेस्ट और हाईली कॉइल्ड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इतना ज़्यादा कॉइल्ड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। कभी ये लार्ज इंटेस्टाइन को मत लिख देना, ये सिर्फ देखने में लंबा लगता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होते हैं, वो 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है। सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में। हमारे अंदर हम हैं ओमनीवोर्स जो कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को मिलाकर बना है। हम मीट भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो होती है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो नॉर्मल होती है। हर्बीवोर्स की जो होती है वो लॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को जैसे हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स, है ना, प्लांट्स खाते हैं वो ग्रीन लीव्स, है ना, तो उनके अंदर सेलुलोज होता है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है यहाँ पर। एंड मीट जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो कार्निवोर्स की जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अपने कोई सिक्रीशंस नहीं होते, वो लेता है लिवर और पैनक्रियास से। और इनके जो सिक्रीशंस होते हैं यानी कि हमारे लिवर और हमारे जो पैनक्रियास के सिक्रीशंस होते हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होते हैं। फिर जब इंटेस्टाइन को चाहिए होता है, ये आपको कनेक्शन दिख रहा होगा ये यहाँ से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बाइल जूस सेव हो गया। यहाँ पे हमारे पैनक्रियास देख रहे, आप यहाँ पे एक्सटेंशन देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन दे रखी है और फिर यहीं से कनेक्ट होके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारा। तो
लिवर सिक्रीट करती है बाइल जूस एंड पैंक्रियास के भी 3 सिक्रीशन होते हैं, ठीक है, दैट इज अमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। अमाइलेस जो है आप अमाइलेस नहीं लिखेंगे क्योंकि सलाइव जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होता है उनका भी अपना एक सिक्रीशंस होता है जो कि होता है सलाइवरी अमाइलेसिस, ठीक है, तो आप लिखेंगे पैनक्रियाटिक अमाइलेसिस। गॉट इट? नाउ लिवर ने सिक्रीट कर दिया बाइल जूस, ठीक है, तो बाइल जूस भाई करता क्या है? बाइल जूस जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी जो ये आलू, ये वो चिली पटेटो, ये सब जो खाते हैं ना, उसे डाइजेस्ट करवाने में हमारा बाइल जूस ही मदद करता है। जिस फूड के अंदर फैट होता है उसके बहुत ही बड़े यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ग्लोब्यूल्स का आप मॉलिक्यूल्स भी खा सकते हो, उसके बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारे जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉलर में बदल देते हैं ताकि आगे जो आके हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फैट्स को आसानी से डाइजेस्ट कर ले। कौन करता है फैट्स को डाइजेस्ट? लिपेस। लिपेस होता है पैनक्रियास, ये पैनक्रियास देखना यहाँ पर, पैनक्रियास के अंदर जो लिपेस होता है वो डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड जो कि जो कि छोटे हो रहे हैं, इमल्सिफाइड जो बाइल जूस ने छोटा कर रहा है, तो उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है हमारा लिपेस। सेकंड, अगर बाइल जूस ना हो तो हमारे इंटेस्टाइन में जो है वो एसिड फूड चला जाएगा जिससे हमारे दर्द भी हो सकता है वहाँ उस जगह पे। तो जो हमारा एसिडिक फूड यानी कि HCl जो कि हमारा स्टमक से सिक्रीट हो रहा है, उस मीडियम को, उस फूड को अल्कलाइन में बदलने के लिए हमारा जो है बाइल जूस मदद करता है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा जो है कौन सा जो हमारा केमिकल है जो हमारा कि कौन सा हमारा गैस्ट्रिक जूस है जो कि अल्कलाइन में काम करता है और एसिडिक में काम करता है। एसिडिक में करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, एंड अल्कलाइन में काम करता है हमारा बाइल जूस। पैनक्रियास के बहुत छोटे छोटे फंक्शन है इनके, दैट इज ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स, पेप्सिन ने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था, उसी पेप्टोन्स को यानी कि आप प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, अगर आप प्रोटीन्स लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। पेप्टोन्स जो है आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं दे रखा है, इट्स जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं ट्रिप्सिन और लिपेज को डाइजेस्ट करता है सॉरी फैट्स को डाइजेस्ट करता है हमारा लिपेज। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है अमाइलिस। अमाइलिस अमाइलिस जो होता है वो पैनक्रियाटिक अमाइलिस होता है, ये रहा पैनक्रियाटिक अमाइलिस, जो कि जो स्टार्च होता है यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा gland in the walls of small intestine secretes intestinal juice contains enzymes। तो 3 होते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज करता है, एंड फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स जो होता है वो अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट्स होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। फैट्स जो होते हैं ना उनकी ना लेयर होती है लाइक दिस, नीचे भी ऐसे 2 होते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ये 2 होते हैं। जब ये फैट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं, अलग से ब्रेक हो जाते हैं ना यहाँ से, तो ये इनके नीचे ये सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर जब फैट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये ऊपर वाला जो होता है हमारा ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, और ये जो होता है हमारा फैटी एसिड्स होता है। इनका डायग्राम आपका आएगा नहीं, इट्स जस्ट
फॉर द एक्सप्लेनेशन। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो उसके अंदर इंटेस्टाइन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाय जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड विलाय जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बाहर की इनर लाइनिंग होगी, इसे हम कहते हैं विलाय। ठीक है, तो विलाय जो होता है क्या होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कुछ मुड़ा मुड़ा सा होता है। तो वो क्या करता है, वो जो होता है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि एब्जॉर्प्शन जो हो वो अच्छे से हो। ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो जब हमारा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद जब वो एब्जॉर्ब होता है तो वो विलाई के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और आपने सुना होगा कि ब्लड वेसल, सुना नहीं, ये एक्चुअल में होता है दैट ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो एब्जॉर्ब फूड होता है वहाँ से वो विलाए ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स जो कि एब्जॉर्ब फूड से हमें मिलते हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे सेल्स को पहुंचाता है। तो take the absorbed food to the cells, in the cells it is utilized to obtain the energy, तब हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है ताकि वो न्यू को बना सके और ओल्ड टिश्यूज जो है वो रिपेयर हो सके। और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब दो चीज़ें हो सकती है। एक, ये क्वेश्चन भी आया था, इसे गलत मत करना। क्या होता है एब्जॉर्प्शन जो होती है, दो होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ये गलत मत कर देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये देखिए, इट्स वॉल एब्जॉर्ब द मोर वाटर फ्रॉम इट्स मटीरियल, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड जो कि विलाई करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरी की पूरी पक्की। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब फूड जाता है जो कि हमारे एनएस के थ्रू निकल जाता है। एंड दिस इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको और भी इसके नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, और इसकी एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बाय बाय।